point at the initial point will be converted into the potential energy at the closest approach. So we can say kinetic energy K will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 by R, right? Yes. So, but what will be the Q1? Q1 is the charge of the alpha particle, and the charge of the alpha particle is 2e. Okay? 2e, alpha particle. Yes, the charge of the alpha particle is 2e, where E is the charge of proton or charge of electron, you can say, है ना? Yes. And what will be the charge of Q2? Q2 means the charge of the nucleus. And what will be the charge of nucleus? The charge of the nucleus will be Ze. Charge of the nucleus will be? आपकी आवाज कट रही है, वापस बोलो। Charge of the nucleus will be Ze. Z, where Z is the atomic number. Z is the atomic number. That means number of proton inside the nucleus. अच्छा, yes. So number of proton inside the nucleus is Z, and total charge of the one proton is E. That's why total charge of the nucleus will be Ze. So we can say this kinetic energy will be equal to potential energy. Potential energy is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R, where Q1 is 2E and Q2 is Ze upon R is R naught. Okay. Yes. So this R naught can be written as 1 by 4 pi epsilon naught into 2Ze square upon kinetic energy. Any problem? Achha. Yes. And sometime you will not given the kinetic energy. The question were given the velocity of the alpha particle. So you can put the kinetic energy as kinetic energy is equal to half mv square, है ना? Or sometime also not velocity is given, sometime accelerating potential is given. So you will put kinetic energy is equal to E into V. Yani kinetic energy is equal to basically Q into V, where Q is the charge and here alpha particle, so charge of the alpha particle is 2e. So this kinetic energy can also be written as 2e into V, where V is the accelerating potential. Got it? Yes. कभी कभी हमें मतलब वोल्टेज दिया रहेगा कि अल्फा पार्टिकल को 10 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया गया है, तो हमें फिर काइनेटिक एनर्जी की जगह पर 2e into 10 डालना पड़ता है, ठीक है ना? तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर एंड अनदर फॉर्मूला इज चार्ज इनटू वोल्टेज. चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 2e एंड वोल्टेज इज v. ओके, यस. तो ये एक फॉर्मूला याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नेक्स्ट टर्म इज इम्पैक्ट पैरामीटर. इसमें एक टर्म आता है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर. इम्पैक्ट पैरामीटर, this can be denoted by a small b or sometime denoted by a small h. तो impact parameter is, let's say this is the central line, this is the path of the alpha particle which is returns back at 180 degree, right? Yes, this is the central line. Central line means the path on which alpha particle comes back at 180 degree, deflected back at 180 degree. Okay, yes. So suppose this is one alpha particle which is moving on this path, and the path of this alpha particle, the distance of the path of this alpha particle from the central line is known as impact parameter of this alpha particle. Like this can be written as, let's say, b1. Okay. Similarly, this is the path of the another alpha particle, and the distance between this path to the central line is known as impact parameter of the another alpha particle. You can say b2. Yes. कोई दिक्कत नहीं. तो इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, इम्पैक्ट पैरामीटर का सिंपल आप ये डेफिनेशन याद रख सकते हो कि द डिस्टेंस between path of alpha particle to the central line. ठीक है ना?
Yes. तो क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कि इफ impact parameter equal to 0, so what is the means of impact parameter is 0? That means alpha particle is moving on the central line. When alpha particle moving on the central line, then their impact parameter will be 0, right? Yes, sir. Because the distance from the central line will be 0, so we can say impact parameter will be 0. Okay, Yes. so what will be the angle of deflection? If impact parameter is 0, then theta will be what? Theta will be 0 degree. नहीं, why 0 degree? Alpha particle, let's say this is the nucleus. Alpha particle is moving on this path. When alpha particle will move on this path, then impact parameter will be 0, right? Yes. So what will be the angle of deflection? It was going along this and comes back on the same path. The angle of deflection will be 0. 180 degree. 180 degree, na? So if impact parameter is 0, angle of deflection will be 180 degree. And let's say if theta is equal to 0, let's say if theta is equal to 0, then what will be impact parameter? Yes. Impact parameter मतलब straight चल जाएगा. नहीं, if theta is 0, that means alpha particle is going एकदम straight. So alpha particle is going straight. How this is possible and when it is possible? It's possible only and only when there is no any force experienced by the alpha particle from this nucleus. Okay, कैसे कोई ऑप्शन? when this is possible that कि alpha particle go straight, when it is possible only and only that when this alpha particle will not experiences any force from the nucleus. If it will not experience any force from the nucleus, then it will go straight, right? हेलो सर की थोड़ी आवाज कट गई. मैं कह रहा हूं कि ये अल्फा पार्टिकल कब कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. हेलो सर की आवाज कट गई. अब आ रही है? हेलो. हाँ, अब आ रही है. यस सर, आते रहिए थोड़ी बहुत. हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अल्फा पार्टिकल कब कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. जब थीटा 0 डिग्री होगा. थीटा 0 डिग्री होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ फोर्स कब फील नहीं करेगा. तो जब ये अल्फा पार्टिकल काफी दूर होगा इस न्यूक्लियस से, काफी दूर होगा, तभी तो फोर्स फील नहीं करेगा ना. अच्छा हाँ. यानी इस अल्फा पार्टिकल का पाथ जितना दूर हो सके उतना बढ़िया है ना. तो जितना दूर कितना दूर, तो हम बोलेंगे इन्फिनिटी. हम क्या बोलेंगे? अच्छा, इन्फिनिटी. यस, इन्फिनिटी. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है. नो सर. हाँ, इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि दिस इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है b, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है cot थीटा बाई 2 के. ये सीधा फॉर्मूला याद रखना है. इम्पैक्ट पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot थीटा बाई 2, where theta is the angle of deflection and b is the impact parameter. इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन सीधा बनता है. क्वेश्चन ये है कि if angle of deflection is 90 degree, then impact parameter is, let's say, 2 Fermi meter या 20 Fermi meter, let's say. ठीक है ना. then what will be 20 हाँ, फर्मी मीटर पढ़ते हैं इसको. 10⁻⁻15 मीटर होता है ये. ठीक है ना. अच्छा. then what will be angle of deflection या what will be impact parameter if angle of deflection is, let's say, 60 डिग्री, है ना. ऐसा क्वेश्चन है. अच्छा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि इम्पैक्ट पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
cot theta by 2. So we can say कि this b1 upon b2 can be written as cot theta 1 by 2 upon cot theta 2 by 2. बिकॉज ये प्रोपोर्शनलिटी है, तो जब हम इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट से कट जाएगा रेशियो लेंगे तो, है ना। तो ये हमारा B1 कितना हो गया, B1 हो गया हमारा 20 फर्मी मीटर, और B2 अपने को पता करना है cot थीटा 1 by 2 यानी कि cot 90 by 2 मतलब कि cot 45 हो जाएगा, अपॉन cot थीटा 2 by 2 का मतलब cot 60 by 2 मतलब कि cot 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो we can say 20 upon B2 can be written as cot 45 is what? Cot 45 is 1, right? Yes. And cot 30 is root 3, है ना? Yes. तो we can say कि this B2 will be equal to 20 root 3 Fermi meter. Okay? Yes, sir. तो simply we can solve this question by applying simple this formula, है ना? Yes. और एक और क्वेश्चन आता है, एक और पॉइंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन दी पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है ना? अच्छा, ये भी है। हाँ, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेगा कि सपोज 60 डिग्री पर 10 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है, तो पता करो 90 डिग्री पर कितने अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है ना? मतलब सर पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? हाँ, तो अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बोलेगा तो इम्पैक्ट पैरामीटर बोलेगा तो ये यूज करना है, और बोलेगा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो ये वाला यूज करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल। अच्छा, ठीक है ना? ठीक। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन दी पावर 4 थीटा बाई 2 वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल बोलेगा तो आप कहोगे नंबर ऑफ पार्टिकल n1 अपॉन n2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर साइन दी पावर 4 थीटा बाई 2 का इनवर्सली है, तो हम कहेंगे साइन दी पावर 4 थीटा 2 बाई 2 अपॉन साइन दी पावर 4 थीटा 1 बाई 2। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, है ना, कि अगर सपोज 90 डिग्री पे 10 पार्टिकल है तो 60 डिग्री पर कितना पार्टिकल होगा, यहाँ से सॉल्व नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ, तो इस पर सिंपल सा क्वेश्चन करना है, राइट? यस। इसके बाद जो आ जाता है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर के बाद आ जाता है, जैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? साइन दी पावर 4 है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? जैसे थीटा हाँ, वेट, हाँ, थीटा 2 60 डिग्री है। हाँ, तो चलो थीटा 2 अगर मान लो 60 डिग्री है, तो साइन दी पावर 4 60 बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 30, और साइन 30 1 बाई 2 होता है, तो यहाँ पर पावर 4 लगा है तो इसको 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 ऐसा कर नहीं सकते। अच्छा, ठीक है, समझ रहे हैं ना? यस, यस। अब देखो नेक्स्ट हमारा इसमें क्या आ जाता है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है बोर पोस्ट्यूलेट्स, है ना? अच्छा, ठीक। बोर साहब ने इस पर, रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल दिया, लेकिन हमें वो यहाँ मॉडल जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल रदरफोर्ड का यही इम्पैक्ट पैरामीटर जानना था। ठीक है ना? इम्पैक्ट पैरामीटर, क्लोजेस्ट अप्रोच एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल। ओके, Yes. Now another is बोर postulates। तो बोर भी आगे चल करके एक साइंटिस्ट आया, उसने एटम के बारे में अपना एक मॉडल दिया, एक लॉ दिया बेसिकली, और उन्होंने कुछ बातें कही। पहली बात इन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल जो है, ये सब हालांकि केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा पूरे डिटेल में कि रदरफोर्ड का क्या ड्रॉबैक था, थॉमसन का क्या था, ये सब हमें यहाँ जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? Yes. तो रदरफोर्ड का जैसे एक ड्रॉबैक था कि उसने किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा इसके बारे में कोई डेटा नहीं दिया था, तो जिसकी वजह से वो ऑर्बिट की स्टेबिलिटी के बारे में उसका मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा और सम टाइम के बाद वो जाकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो उसको दूर करने के लिए बोर ने अपनी थ्योरी रखी थी, और नील्स बोर ने जो 2-4 बातें कही वो बात आपको सीधा सीधा याद रखना है। ठीक है ना? Yes. पहली बात जो कहा नील्स बोर ने, वो कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व
only in that orbit whose circumference is integral multiple of wavelength of electron। ठीक है ना? यस क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब हुआ कि जिस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा उसका सरकमफेरेंस जो होगा मतलब 2 पाई r जो होगा दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी n लैम्डा के बराबर होगा, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा यस कोई दिक्कत? नो सर। और यहाँ लेमडा आपको डुअल नेचर में पढ़ाया जाता है, हालांकि डुअल नेचर इससे पहले बताना होता है लेकिन आपको स्टार्ट कर दिया गया तो कोई बात नहीं। लेमडा इज इक्वल टू असल में होता है h बाई पी के बराबर, वेयर p इज द मोमेंटम, और कैन वी से कि h बाई एम वी के बराबर। अरे बस एच क्या है सर? h इज द प्लैंक कांस्टेंट। ये सब डुअल नेचर में बताया जाता है, डुअल नेचर इससे पहले पढ़ाना होता है बट क्या करोगे। h इज इक्वल टू होता है 6.63 इंटू 10 द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है ना? अच्छा यस। खैर ये वैल्यू याद रखना, ये कांस्टेंट होता है, इसका नाम है प्लैंक कांस्टेंट। क्या नाम है? प्लैंक। प्लैंक। हाँ पढ़ा। ठीक है ना? तो लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी होता है, तो वी कैन ऑल्सो से कि दिस 2 पाई r इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू h बाई कितना हो जाएगा हमारा mv हो जाएगा, और अगर इस mv को इधर ले आए तो वी कैन से mvr इज इक्वल टू हो जाएगा nh अपॉन 2 पाई के बराबर। ठीक है? यस। एंड दिस mvr इज बेसिकली एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। mv मतलब हो गया p और r मतलब हो गया रेडियस वेक्टर, तो वी कैन से r क्रॉस p इट कैन बी रिटन एज, तो r क्रॉस p इज बेसिकली एंगुलर मोमेंटम, तो l इज इक्वल टू हो जाएगा nh बाई 2 पाई के बराबर। NH अपन 2 पाई। तो इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन दैट ऑर्बिट इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। And Yes. here n basically represents the number of orbit in which orbit the electrons is rotating. Okay. Yes. In which orbit electrons is basically revolving, not rotating, we can say. तो L is equal to ये क्या हो जाएगा हमारा NH by 2 पाई आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये पहली बात थी इसकी। दूसरी बात इन्होंने जो कहा, सेकेंड बात जो बोर्स ने कहा वो ये कहा कि when electron jumps from one orbit to another orbit, then lose or gain of energy by the electron is equal to the energy of photon. एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। फोटोन, इसको हम बोलते हैं असल में फ्रीक्वेंसी क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं? सेकेंड बात इन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी क्वांटाइजेशन को लेकर के इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा फ्रीक्वेंसी क्वांटाइजेशन को लेकर के, तो कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, देन एनर्जी गेन or lose by the electron is equal to energy of photon. Photon is basically a small packet of the energy. Yes sir. हाँ, जो लाइट होता है ना, तो लाइट की एनर्जी का जो स्मॉल पैकेट होता है दैट इज नोन एज बेसिकली फोटोन। ठीक है? अच्छा फोटोन है। फोटोन PHOTON फोटोन। वैसे बात होता है ना फोटोन क्या? फोटोन बेसिकली जो लाइट होती है ना, तो लाइट बेसिकली एक एनर्जी है, तो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट को एक तरह से समझ लो फोटोन बोला जाता है। अच्छा अच्छा।
लाइट में जो है ना, लाइट में असल में लाइट जो आती है तो लाइट में वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट बिहेव लाइक ए पार्टिकल, है ना। अच्छा यस। तो वो जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल असल में समझ लो एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट है जिसको फोटोन बोलते हैं, हाँ समझ रहे हो ना। ठीक। तो यानी इसके अकॉर्डिंग हो गया कि जो चेंज ऑफ एनर्जी होगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तो चेंज ऑफ एनर्जी जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, और एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू के बराबर होता है, जहां पर एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है। यस। तो इसीलिए इसको हम फ्रीक्वेंसी क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। कोई दिक्कत? नो। तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। यस। हाँ, तो एक तो आ गया ऑर्बिट क्वांटाइजेशन, दूसरा आ गया फ्रीक्वेंसी क्वांटाइजेशन। मैन ये दो बात इन्होंने कहा, हालांकि केमिस्ट्री वाले और भी दो चार बात घसीट वसीट के लिखा देते हैं, लेकिन मैन यही दो बात थी, ठीक है ना। ठीक। अब इसमें क्या हमें जानना है, इसमें जानना है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, लेट्स से दिस इज अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग लाइक दिस ऑर्बिट, लेट्स से इन दिस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, देन वी वांट टू कैलकुलेट द radius of this orbit as well as the velocity of the electron in this orbit. Okay. यस। तो रेडियस आप कैसे निकाल सकते हो? तो रेडियस के को निकालने के लिए सबसे पहली बात तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है ये बताओ जल्दी से। न्यूक्लियस का चार्ज सर के Q1 मतलब नहीं, व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस? ओनली चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा Zd होता है। Zd, yes. Charge of nucleus is Zd, and the here electron is revolving around the nucleus, so the another charge is small e, basically the charge of electron. So if you want to calculate the radius of this orbit, so we can say कि this electron will experiences a centripetal force, and that centripetal force is given by the basically Coulomb force between the nucleus and the electrons. So we can say कि centripetal force mv square by r is equal to the Coulomb force between the nucleus and the electron. So we can say this will be equal to k into q1 q2 by r square, and q1 is Ze and q2 is E upon r square, we can say. Any problem? ये mv स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर फोर्स। Yes, centripetal. दूसरा कूलम फोर्स। Centripetal, no, see कि electron is revolving on the circular path, and if any object is moving on circular path, it will experiences a basically centripetal force. It must have a centripetal force basically, है ना। तो from where this centripetal force is given to the electron? So this centripetal force is given from the Coulomb force between the electron and the nucleus. So we can say कि basically Coulomb force is equal to the centripetal force. Coulomb force is working as a centripetal force here. Or you can also understand by easily at easy term that when electron revolve in this orbit, it will experiences a centrifugal force. Centrifugal force is what? mv square by r, and this centrifugal force is balanced by the Coulomb force, Coulomb attractive force between the nucleus and the electron, है ना। Yes. तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, दोनों सेंट्रीफ्यूगल बोलो या सेंटीपीटल बोलो, दोनों की वैल्यू mv स्क्वायर बाय r होती है। तो दिस mv स्क्वायर बाय r इज बेसिकली द कूलम्ब फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन से mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू kZe स्क्वायर बाय r स्क्वायर। यस। तो इस r से इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो वी कैन से दिस r कैन बी रिटन एज kZe स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? No. And this is, let's say this is the equation 1, and another according to Bohr, we know what? We know कि angular momentum L is equal to nh by 2 pi. So we can say what? कि we can say mvr is equal to nh by 2 pi, or we can say कि this v is equal to nh by 2 pi into m into r. Let's say this is equation 2. Okay. Yes. And we are just going to put the equation 2 in 1. So if we'll put the equation 2 in 1, we will get r is equal to kZe square
अपॉन m इंटू वी स्क्वायर, तो v की जगह पर हम पुट कर देंगे NH बाय 2 पाई mr का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी r इज इक्वल टू kze स्क्वायर अपॉन m इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अगेन m स्क्वायर r स्क्वायर। ओके, यस। इस m से ये स्क्वायर कट, हाँ, और ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, यस सर। और इस r स्क्वायर को इधर ले आओ तो इट कैन बी रिटन एज r अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है ना, तो r से ये स्क्वायर कटेगा, तो वी कैन से 1 बाय r इज इक्वल टू दिस, और वी कैन से r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, where k is the Coulomb constant, that is 9 into 10 the power 9. Okay now? यस सर। And m is the mass of the electron, e is the charge of electron. Any problem? नो सर। इसमें देखो क्या है, ये h प्लैंक कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कांस्टेंट आल्सो, k कूलम्ब कांस्टेंट, E is the charge of electron that is also constant. So all term are constant except the number of orbit and the atomic number. That means कि ये हमेशा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन हीलियम, हमेशा हाइड्रोजन या हीलियम का ही बोलेगा. It is not necessary, it is not always compulsory. Okay ना? सर क्यों? क्योंकि वो कभी आपको सोडियम का बोल सकता है निकालने के लिए, कभी हीलियम का, कभी आर्गन का, कभी किसी का भी बोल सकता है. तो Z और N तो वेरिएबल है ना, कुछ भी हो सकता है. अच्छा हाँ। तो बाकी Z और N को छोड़ के बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है. तो दिस R इज इक्वल टू कैन ऑल्सो बी रिटन एज h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर बाई z. ऐसा सिंपली लिख लेते हैं. ठीक है ना? यस। और इस पूरे की जो वैल्यू आती है ये R इज इक्वल टू सीधा याद रख लेना 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में. समझे? सीधा सीधा रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम. ठीक है ना? एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, जेड इज द एटॉमिक नंबर. सपोज हमें बोलेगा कि सोडियम के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस पता करो, तो सोडियम का थर्ड ऑर्बिट बोलेगा तो जेड की जगह 11 डाल देंगे, और थर्ड ऑर्बिट बोलेगा तो एन की जगह 3 डालेंगे. 3 का स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लेंगे. एन की जगह क्या डालेंगे? जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिट है, 3. जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिट है. लेट्स से द क्वेश्चन इज दैट कि फाइंड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ सोडियम एटम. ठीक है ना? यस. तो सोडियम एटम के थर्ड ऑर्बिट का अगर रेडियस पता करना है तो r इज इक्वल टू 0.53 इंटू थर्ड बोला है तो 3 का स्क्वायर अपॉन सोडियम बोला है तो 11 डाल देंगे यहाँ पर, और ये क्या चीज में आंसर आएगा? एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा. तो दिस विल बी 0.53 इंटू 9 अपॉन 11 एंगस्ट्रॉम. इसको सॉल्व कर लेना है, रेडियस आ जाएगा. ओके हाँ, रहने दो, आज यहीं तक, कल करेंगे. ठीक है ना? ओके सर.